Now discuss you in the previous section after your unit test or online test. We have discussed the following things. I want to repeat as per your prescribed book. The first is principle of reversibility of light. We have already discussed. If you read from the book, you will see the same things, right? And the next topic we have discussed here about, I say this experiment is performed in your school lab, right? And the refraction through a glass block we have already discussed, where we have discussed about the lateral displacement. That topic is clear, and I skip this topic. Now discuss at the end of this chapter. We will discuss prism. It is a different topic, so I ignore this topic and then reach to very first. मैंने आपसे कहा था ना, हम आगे पीछे बुक में दे देते हैं, बट हमें पढ़ाना होता है उसी रिस्पेक्ट में जिस रिस्पेक्ट में एक्चुअल में जो टॉपिक्स चल रहा होता है. So this one is simple application of refraction of light. Real and apparent depth की बात मैंने आपसे की थी, right? और उसका एक रे डायग्राम मैंने शो किया था. Again the ray diagram given in your book also, right? And then already discussed ये coin वाला examples मैंने आपको दिया था. Seems to be raised when water is poured in a tumbler due to refraction of light. Real depth upon apparent depth की बात आपसे की थी. Apparent bending of a stick under water ये भी आपसे डिस्कस किया था. So apparent twinkling of stars, you can read again the phenomena based on this refraction through denser to the rarer medium. And after that covered the topic is total internal reflection, right? And the critical angle. So first we have explained about the critical angle. ये लोग नीचे से दिखाते हैं denser to rarer, हम ऊपर से बनाते हैं आपके easy उसको करने के लिए. So that is the part of this already discussed you. TIR is already discussed you, right? Factors affecting the critical angles, किन किन बातों का इफेक्ट पड़ता है ये हम आपसे बात बता ही चुके थे, फिर भी एक बार रीड कर सकते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडिया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दैट हमेशा डेंसर टू रेरर लाइट या रेरर टू डेंसर जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात ज़रूर होती है. सेकेंड इज कलर ऑफ लाइट, राइट? Third is temperature of the medium. Critical angle increases on increasing the temperature of the medium. Always remember the three important points. Essential conditions of total internal reflection we have already discussed. The first thing, light ray should be always pass from denser medium to the rarer medium. And the second one is the angle of incidence should be greater than the critical angle. And now we are going to discuss to you the other topic. अब हम जो ऑलरेडी ये मैंने एंगल डायग्राम आपसे डिस्कस नहीं किया, बुक के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये बीच में डाल देते हैं टॉपिक डिस्टर्ब हो जाता है. अभी हमने देखो यहाँ TIR स्टडी किया है, आप इसीलिए तो बुक पढ़ के कई बार कंफ्यूज होते हैं. हमने यहाँ आपसे TIR डिस्कस किया, तो माय डियर TIR से रिलेटेड एप्लीकेशंस, TIR से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी तो हाथों हाथ आ जाए ना, हैंड टू हैंड. सो वी आर इग्नोरिंग दिस TIR ट्राइंगल बेस्ड थिंग्स, हमने इसको स्किप किया और सीधे हम पहुंच गए आपके पास ये बताने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने फाइनल एग्जांपल्स आपको दिया था अबाउट मिरेज, राइट? ये डायग्राम आपको बनाकर दिखाया था, बुक के अकॉर्डिंग बताया था, डेंसर टू रेरर. फ्यू अदर एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन, दैट इज़ ए पेरिस्कोप यूज्ड इन सबमरीन सिस्टम्स. ठीक है, ये पोर्शन होता है इनसाइड द सबमरीन्स और ये पार्ट होता है आउटसाइड द सबमरीन्स. एक्चुअली जब पहले वाटरप्रूफ कैमराज स्ट्रांगली अवेलेबल नहीं थे, ये कहिए अवेलेबल ही नहीं थे वाटरप्रूफ कैमराज वगैरह, तब हम लोग जब सबमरीन्स में जाते थे तो आउटसाइड व्यू कैसे देखते, तो उस टाइम जो फिनोमेना यूज़ होता था, देन यूज द पेरिस्कोप. पेरिस्कोप के थ्रू यूज़ होता था. एक ट्राइंगल ये प्रिज्म ले लिया, लाइट रे आई, TIR हो गया, रिफ्लेक्ट हो गई, जितने डिग्री 90 डिग्री पर आई 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो गया. फिर एक और ट्राइंगल हमने इससे इन्वर्टेड रखा, उसने भी TIR के कॉन्सेप्ट से लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया. एंड यू विल सी द आउटसाइड इमेज फ्रॉम थ्रू दिस टू प्रिज्म कॉम्बिनेशन वी कैन सी फ्रॉम इनसाइड. सो ये पेरिस्कोप यूज़ होता था. अब तो जितने भी सबमरीन्स हैं, एडवांस सबमरीन्स हैं, ये यूज़ नहीं होता. अब तो GPS सिस्टम्स एंड अदर थिंग्स, कैमराज वाटरप्रूफ, बड़े स्ट्रॉन्ग कैमराज आ गए,
तो वही कैमराज से पिक्चर्स और थ्योरीज वहीं से फॉर्म्ड हो जाती है। सेकेंड, इट इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड यूज्ड नाउ डेज इज ऑप्टिकल फाइबर। वी आर यूजिंग इन ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, ठीक है। इट इज़ ए टाइप ऑफ द वायर। ये बिल्कुल हॉलो पाइप होता है बेटा, इसमें कुछ होता नहीं, राइट, इनसाइड कुछ नहीं होता। और हम अपने सिग्नल्स को, डेटा सिग्नल्स को हम पास करते हैं थ्रू लाइट, और इसको ऑप्टिकल फाइबर की लेयर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जब भी लाइट एंटर हम कराते हैं तो TIR हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो जितने डिग्री एंगल से आता है उतने डिग्री एंगल से रेगुलर क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता रहेगा। आप कितने इसे मोड़ दीजिए वायर को, नहीं मोड़िए, वो रिफ्लेक्ट होता रहेगा और सिग्नल्स पास हो जाएगा फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। इस ऑप्टिकल फाइबर्स के TIR के कॉन्सेप्ट से जो हमें बेनिफिट है बेटा, वो बेनिफिट है कि आपको पता है कि लाइट ट्रेवल इन ऑल द थ्री मीडियम्स एंड ट्रेवल ऑल्सो इन वैक्यूम। तो इसमें बेनिफिट ये हुआ कि अगर किसी भी रीज़न से कहीं पर मीडियम नहीं भी है तो ये ट्रेवल करता है आराम से और कोई प्रॉब्लम इसको नहीं आती। सो ऑप्टिकल फाइबर आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक एंडोस्कोप्स which can be inserted directly into the bronchial tubes, the bladder and the colon and so on for direct visual examination. A bundle of fibers can be enclosed in the hypodermic needle for study of tissues and blood vessels for beneath the skin. और साथ ही साथ मैंने आपको बताया आजकल हम लोग यूज़ करते हैं 5G और कहना चाहिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन में वी आर ऑल्सो यूज द फाइबर ऑप्टिक्स। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द थ्योरी एंड यू नो ये रीड कर सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यू टॉपिक अगेन, और यू कैन से जो हमने स्किप कर दिया है उस टॉपिक पर हम जाएंगे। दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू द प्रिज्म, मीन्स रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, refraction through a glass prism. So now discussed you the few how to refract the light through the prism. तो इस पर काम करते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू refraction through a glass prism. Incident light ray, right? Draw the normal on this surface. Right? For your better understanding, use a different color of pen also, and light ray bend towards normal. Right, and after that again refract. So AC draw a normal through this AC surface. अब लाइट रे जा रही है डेंसर टू रेयर, सो अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो यू कैन से द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज दिस वन इज R. अगेन दिस एंगल वी कैन से R dash. This one is angle of incident I, and this one is called emergent angle. In few books we are saying about E. So first theory is पहले मैं ये बोलता हूँ हमेशा कि what is prism. So where the two refracting surfaces, listen carefully, where the two refracting surfaces joined at a particular angle, two refracting surfaces joined at particular angle, that is called angle of prism, and the whole system is called the prism. Now we can see the surface one like this AB, surface 2 AC joined at particular angle, this one,
और इसे हमने नाम दिया है दैट वी आर सेइंग अबाउट एंगल ऑफ प्रिज्म। अब हमें एक्चुअली करना क्या है, समझना क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, क्लास 12th में इसका कोर्स में कोई डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है। डेरिवेशन इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक ऑल्सो, बट एग्जाम्स में इसका ये डेरिवेशन, ये स्टेप्स कोर्स में नहीं है, राइट। हम लोगों को बेसिकली जो जो चीज़ें याद रखनी है प्रिज्म के रिस्पेक्ट में, उसमें हमें पता होना चाहिए व्हाट अबाउट एंगल ऑफ प्रिज्म, हमें क्लियर होना चाहिए अबाउट आई, हमें क्लियर होना चाहिए अबाउट रिफ्रैक्टिंग एंगल आर, दिस वन इज आर डैश एंड दिस वन इज एंगल ऑफ एमर्जेंट ई, ये पता होना चाहिए। एक और एंगल पर हम डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन इफ यू प्रोड्यूस्ड, पहले मैं आपको समझा दूं उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। इफ यू प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे फॉरवर्डेड एंड इफ यू प्रोड्यूस्ड एमर्जेंट रे बैकवर्डेड, पीछे की तरफ, so the angle between them, this one, is called delta, that is called angle of deviation। बच्चे के बार पूछते हैं इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, पूछते तो नहीं है, मन में रहता है, पता नहीं क्या होता है। क्लासरूम में भी हम यही कहते हैं कि बेटा प्लीज़ पुट अप द क्वेश्चन, पुट अप द क्वेश्चन, पूछोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। लेकिन स्टूडेंट साइलेंट मोड में बैठ जाते हैं। जो आप लोग कह रहे हैं ना आजकल ऑनलाइन में प्रॉब्लम आ रही है, ऑनलाइन में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। क्लासरूम में भी आप एज इट इज़ पढ़ते हैं, हम बोलते रहते हैं कि कोई क्वेश्चन पुटअप करना है किसी को, आज द क्वेश्चन, आप तब भी पुटअप नहीं करते। हमने पूछा इज इट क्लियर, फ्यू साउंड इज प्रोड्यूस, यस सर, नथिंग, यू आस्क द क्वेश्चन। हम आपसे कह रहे हैं पूछो। अब होता क्या है कि हमारे माइंड में जितने भी आता है मैक्सिमम से मैक्सिमम कि ये भी बता दें, ये भी बता दें, ये भी बता दें, वो हम बता के चलते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के ब्रेन को अगर आप स्टडी करेंगे तो वो सेम रिप्लाई रोज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट डे हमारा ब्रेन किसी और तरीके से काम कर रहा है, नेक्स्ट डे ब्रेन किसी और तरीके से काम कर रहा है। ब्रेन इज रेगुलर फ्लक्चुएट एज पर द सराउंडिंग एटमोसफियर। किसी दिन उठे थे, तबीयत ठीक नहीं थी, लगा चलो ये जल्दी से बता करके इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। आपकी मम्मी भी अगर सब्ज़ी बनाती हैं, खाना बनाती हैं, तो रोज़ स्वाद एक जैसा नहीं आता है ना। कभी हल्के सा नमक तेज़ हो जाता है, कभी मिर्च तेज़ हो जाती है, कभी बड़ा आइडियल बनता है, आप कहते हैं आज मज़ा आ गया मम्मा, कभी आप कहते हैं आपने क्या बना दिया ये आज। तो डिपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें पर डिपेंड करती हैं। तो सेम यही होता है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट क्लास में 30, 40, 45 स्टूडेंट बैठा है, तो उसमें से अगर 10 के दिमाग नहीं चल रहे हैं तो आप बाकी के 30 के तो चल रहे हैं ना, तो उनको क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो टीचर आपको 101% रिस्पॉन्स देगा। उसे लगेगा अरे हाँ यार ये रह गया था बताना पॉइंट, सो मैं बता देता हूँ। सो अब देखिए क्वेश्चन भी मैं ही जनरेट कर रहा हूँ कि एंगल ऑफ डेविएशन के केस में व्हेन लाइट रे, ये एंगल ऑफ डेविएशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, बस हमने तो डेफिनेशन तो सुना दी कि द एंगल, अब मैं प्रॉपर बताता हूँ, द एंगल बिटवीन द incident ray produced forwarded and emergent ray produced backward is called angle of deviation। बस बच्चे ने कहा यस सर, हो गया, समझ में आ गया बेटा, यस सर। अरे भाई इसका होगा क्या, क्यों बनाया, एंगल ऑफ प्रिज्म समझ में आता है हमें भाई, जब दो सरफेस ऐड हुई है तो उनके बिटवीन कोई एंगल आ गया। ये आई आर हम पहले से जानते हैं, एमरजेंट एंगल भी पहले से जानते हैं, ठीक है। ये डेल्टा की नीड ज़रूरत ही क्या थी कि इसे फॉरवर्ड ले जाएं, इसे बैकवर्ड ले जाएं। बिकॉज ऑफ दैट द लॉजिक बिहाइंड ऑफ दिस कि बेटा इसके मूवमेंट पर, आई के इंसिडेंट एंगल के मूवमेंट पर एमरजेंट रे का मूवमेंट डिपेंड करता है। तो हमें ये देखना है प्रैक्टिकली कि मैं आई को अगर टर्न करता चला जाऊं, एंगल इंक्रीज या डिक्रीज करता जाऊं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये एंगल ऑफ डेविएशन जो है, यानी आने वाली लाइट रे और सबसे लास्ट की जाने वाली लाइट रे
के बिटवीन क्या इफेक्ट आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं इस आई को बढ़ाता चला जाऊं तो ई भी बढ़ता चला जाए, आई को डिक्रीज करता चला जाऊं तो एमर्जेंट भी डिक्रीज होता चला जाए। क्या ये बिहेव जो है वो आई के रिस्पेक्ट में जो मुझे दे रहा है वो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, और उससे ये पता चलेगा यहाँ से देखने पर कि आई और ई में जो डेविएशन हो रहा है वो कितने का डेविएशन हो रहा है, कितने का डिफरेंस हो रहा है। एक्चुअल ये पता लगाने के लिए हमने इनको आगे पीछे शिफ्ट किया, एक को आगे ले गए लाइट रे को, एक के बैकवर्ड साइड में प्रोड्यूस्ड कर दिया। देखिएगा ये एक तो आपको रे डायग्राम का कंप्लीट आना चाहिए, कॉपी पेस्ट को बना करके देख लेना चाहिए, ठीक है। फिर कुछ रिलेशन है, उन रिलेशन को याद रख लेना चाहिए, ठीक है। वो रिलेशन क्या क्या है मैं आपको अब बताता चलता हूँ वन बाय वन, क्योंकि वो रिलेशन पर ही एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। सबसे फर्स्ट थिंग कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, लिसन केयरफुली, जो एंगल ऑफ प्रिज्म है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू आर प्लस आर डैश। ऐसा देखने में आया है, मैंने बताया डेरिवेशन कंप्लीट नहीं है, लेकिन आपको जस्ट राइट डाउन द रिलेशन, आपको रिलेशन हमेशा याद रखना है। एंगल ए इक्वल्स टू आर प्लस आर डैश। सेकेंड पॉइंट इज, मैं आपको बता दूं ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो, एंगल ऑफ प्रिज्म डेल्टा यानी एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। इसने एमरजेंट बोला है, I2 को मैंने E बोल दिया था एमरजेंट के लिए, ठीक है। तो I1 प्लस I2, लिसन केयरफुली, मैं लिखूंगा I प्लस E इज ऑलवेज इक्वल्स टू, सॉफ्टवेयर हैविंग सम प्रॉब्लम, सो I plus E is always equals to, just wait a minute, I plus E is equals to A plus delta, that is a second relation, always remember I plus E is equals to delta, right। ये दो रिलेशन आपको हमेशा याद रखने हैं। एंड द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन, बस ये कंडीशंस लर्न करनी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए डेविएशन किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ प्रिज्म, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, इन पर डिपेंड करता है हमारे पास। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, वीडियो इज गोइंग वेरी लेंथी, ये बात हम करेंगे मिनिमम एंगल डेविएशन के साथ, यहाँ से फ्रॉम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, कंडीशंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, और लास्ट वीडियो इस चैप्टर की हमारी आएगी रिलेटेड टू द एंगल फॉर्मेशन, TIR का कॉन्सेप्ट थ्रू प्रिज्म, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय।